students, my name is Pranjal Tripathi standing in front of you and wishing you all a very good morning. All my students of class 9, in the previous video you have seen that I have taught you about some topics related to this chapter, that is chapter 3rd, gravitation. In the previous video I have taught you about the variation of the value of small g. Small g is what? Acceleration due to gravity. The value of acceleration due to gravity was not all over the same at every location on the earth. It was varying, it was changing from place to place. I have also taught at what rate and where it will be maximum and where it will be minimum. I have also given some examples and explained them. These examples were the numerical examples. These numerical examples were based upon the questions, or we can say these numerical examples were based upon the formulas related to G, small g. Small g is acceleration due to gravity. So today we are going to discuss some numerical examples that I have given you in your homework. You have to tally or confirm it. So let's start without wasting our time. These numericals are on page number 134 in your book. So students, open your book and watch it. All the 4 numericals I am going to solve. Watch it carefully one by one. Let's start with numerical number 1. Okay. What is it saying? If the radius of the moon is 1.74 into 10 to the power minus 6 meter and the acceleration due to gravity is 1.67 meter per second square, find the mass of the moon. First of all, what is given? Given is the radius of the moon is given. Radius of the moon, that is equal to 1.74 into 10 to the power 6 meter. 1.74 into 10 to the power 6 meter. Okay. So we have to do nothing in that. It is already in meters. You can see that. What is the next thing that is given? The acceleration due to gravity is 1.67 meter per second square. Means acceleration due to gravity is given. Acceleration due to gravity, that is given 1.67 meter per second square. Okay. What is it asking? Find the mass of the moon. It is asking mass. Okay. Here we can see that radius is given, acceleration is given, mass is asking. We know the formula of G, that is acceleration due to gravity is equal to Gm upon R square. From transferring the values here, we can get Gm square upon G is equal to M. Now there is no problem. We have the value of G here, 1.67. R is the radius of the moon. We have the value of this, and we know that the value of capital G, that is gravitational constant, universal gravitational constant, its value is 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. When we will put these values, then we will get the answer. M is equal to G
1.67 into 10 to the power into r square. R square is 1.74 into 10 to the power 6 whole square. And what is G? G is 6.67. Sorry, 6.7. In the numericals, we will use 6.7 into 10 to the power minus 11. But the actual value is 6.67. न्यूमेरिकल में हम लोग कैलकुलेशन इजी हो जाए इसके लिए हम लोग यहाँ पर 6.7 पुट करते हैं. ओके, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. इट इज ए माइन्यूट डिफरेंस. जब इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर दैट इज 7.58 into 10 to the power 22 kgs. ये अब आप सॉल्व करिएगा और आपका आंसर ये आएगा. एंड स्टूडेंट्स, देयर मे बी ए स्लाइट डिफरेंस इन दिस वैल्यूज. जो ये वैल्यू आई है और बाकी भी जो वैल्यूज आएंगी, आंसर्स में पॉइंट का कुछ डिफरेंस हो सकता है. जैसे ये हमारा आंसर आया 7.58, देन आपका आंसर जो हो सकता है वो हो सकता है 7.56 भी आए. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. There is a slight difference in the answers, then it is considered to be correct. ये होता है because of the calculation of these points. जो वैल्यू है, पॉइंट की जो वैल्यूज हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर जब डिवाइड करते हैं तो वो स्लाइट डिफरेंस आ जाता है. उसकी कोई मतलब आप उसकी कोई टेंशन मत लीजिए. जो अगर आपका मेन जो आंसर है दैट इज 7.5, अब 5.6 भी आ रहा है, 5.4 भी आ रहा है, बोथ आ रहा है. ओके, what is the second question? Find the acceleration due to gravity at a height. Find the acceleration due to gravity at a height equal to half of the radius of the earth. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है. कहां पर फाइंड करनी है? अर्थ की रेडियस के हाफ डिस्टेंस ऊपर. फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि ये हमारी अर्थ है. ओके, ये सेंटर है, यहां से हमारी दूरी दैट इज डिस्टेंस ये है r. ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि r/2, यहां से r/2, फॉर एग्जाम्पल मैंने माना कि ये पॉइंट जो है वो इसका यहां से डिस्टेंस दैट इज r/2. यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है. ठीक, तो अर्थ की जो रेडियस है वहां से अर्थ की रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट लोकेटेड है. अब वहां पर उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको फाइंड करना है. ओके, तो फर्स्ट केस में हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला दैट इज gm/r². This formula is when any object is placed on earth. Now we know that now the distance between this object and this radius of the earth is r plus r/2. by r इतना है रेडियस और r/2 ये डिस्टेंस है. तो न्यू रेडियस दैट इज r डैश विल बी इक्वल टू r प्लस r/2. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 2, यहां पर आ जाएगा 2r प्लस r दैट इज इक्वल टू 3/2r. तो इस पॉइंट से इसके इस ऑब्जेक्ट के सेंटर की जो रेडियस है दैट इज 3/2r. अब हमको फॉर्मूला पता है. अब नाउ सेकंड केस में यहां पर इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माना कि हमने g डैश है. अब g डैश, तो g तो कांस्टेंट रहता है, मास भी उस ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा.
आर की जगह हम लोग रखेंगे आर डैश स्क्वायर, बिकॉज आर इज चेंजिंग, रेडियस चेंज हो रही है ना, रेडियस क्या बल्कि डिस्टेंस चेंज हो रही है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच। ओके, तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे जी एम अपॉन आर डैश इक्वल टू, आपको पता है 3/2 आर है, 3/2 आर होल स्क्वायर। तो आपको यहां पर क्या मिला, इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा 4/9 जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नाउ वी नो दैट जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज स्मॉल जी। अब यहां पर पुट कर देंगे यही चीज, 4/9 स्मॉल जी। अब कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है कि g की वैल्यू, हमें पता है कि अर्थ पर कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होती है। केवल अब इस वैल्यू को यहां पर पुट करना है, देन वी विल गेट द आंसर 4/9 इंटू 9.8, दैट विल बी इक्वल टू 4.37 और 35। व्हाट इज द आंसर, 37, 4.37 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ये यूनिट है, ये आप लोग कभी भी भूल मत जाना, क्योंकि ये जी डैश है। जी डैश मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन, द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ मूविंग ऑन द न्यूमेरिकल नंबर 3, what does it say? Consider Earth to be a uniform sphere of radius 6.4 into 10 to the power 6 meters, and its density is 5500 kg meter cube per meter cube. Find the value of acceleration due to gravity on its surface. This is very good numerical and very important numerical also. अब सबसे पहले इसमें क्या दिया है, Consider the Earth to be a uniform sphere of radius. कह रहा है कि अर्थ की जो सरफेस है या अर्थ की जो शेप है उसको आप यूनिफॉर्म स्फीयर मान लीजिए, एंड रेडियस दी हुई है अर्थ की, दैट इज 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 3। रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन, दैट इज इक्वल टू कितनी दी है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। अब इसको कहीं पे भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्यों, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन मीटर्स। व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, एंड इट्स डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी इज इक्वल टू 5500 kg पर मीटर क्यूब। Find the value of acceleration due to gravity, means small g find करना है हमको। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि डेंसिटी दी है और आपको दी गई है रेडियस। हमारे पास जो फॉर्मूला है g का वो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए g की क्या, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमको पता है, r की जो वैल्यू है वो दी गई है, लेकिन we don't have the mass of the earth। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। भाई फॉर्मूले में आपको ये पुट करना है, तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। फिर अगर ये मास ऑफ अर्थ आ गया तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जी की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू दी गई है, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मास ऑफ अर्थ निकालने के लिए डेंसिटी गिवन, डेंसिटी गिवन है, और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां से मास इज इक्वल टू हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके कि नहीं? नाउ अब ये वॉल्यूम किसकी, अर्थ की वॉल्यूम। सो इसीलिए आपको क्वेश्चन में कह दिया गया है कि कंसीडर अर्थ एज ए स्फीयर। तो सबसे पहले आपको स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना जरूरी है।
द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यहां से वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इधर निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर that is equal to 4/3 pi r cube, that is equal to 4/3 into 22/7 into r cube. r cube means जो रेडियस दी गई है आपकी, that is 6.4 into 10 to the power 6 cube. Okay, that is equal to 88/21 into 6.4 into 6.4 into 6.4 into 10 to the power 6 into 6 into 6, that is 6 plus 6 plus 6 कितना हो गया 18, मीन्स की पावर ऐड हो जाएगी, ऐड होती है ना पावर. देन वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस volume of the sphere as 1.098 into 10 to the power 21 मीटर क्यूब. अब हमारे पास वॉल्यूम आ गया. ओके, दैट वॉल्यूम वी विल पुट हियर. वी नो दैट द डेंसिटी इज 5500 into volume is 1.098 into 10 to the power 21. When we will solve it, then we will get the value of mass of Earth as 6.04 into 10 to the power 24 kgs. Okay? अब हमारे पास मास दिया गया, that is m. अब मास ही हमें निकालना था. अब कुछ भी नहीं करना है, केवल जो ये फॉर्मूला है हमारा, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देना है. G is equal to, कैपिटल G की वैल्यू हमें पता है 6.7 into 10 to the power minus 11. मास हमारा आ गया 6.04 into 10 to the power 24 kgs upon r square. R is given, that is 6.4 into 10 to the power 6 a whole square. Okay. When you will solve it, then you will get the value as 9.87 meter per second square. The answer given is 9.83. 9.83 भी सही है, 9.87 भी सही है. मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया. ओके, नाउ मूविंग ऑन, द न्यूमेरिकल नंबर 4. व्हाट डज इट से? What is the acceleration due to gravity if the mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and its radius is 6400 kilometers? Question number 4. अब इसमें कहा गया है कि मास ऑफ अर्थ आपको दी गई है, गिवन वैल्यूज क्या है? मास ऑफ अर्थ, दैट इज m. m कितना दिया है? 6 into 10 to the power 24 kg. Okay, and radius is given. Radius is equal to 6400 kilometers. अब देखिए, सबसे पहली बात कि रेडियस आपको जो अर्थ की दी गई है वो किस में दी गई है? किलोमीटर्स में दी गई है. ये देखिए, सबसे पहले तो यही देखिए. तो इसको चेंज करेंगे, 6400 into 10 to the power 3, then it is in meters, that is 6.4 into 10 to the power 6 meters. ठीक है. अब पूछा क्या गया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा गया, दैट इज g पूछा गया है. तो g का फॉर्मूला gm/r². g की वैल्यू पता है हमको, 6.7 into 10 to the power minus 11. m गिवन है 6 into 10 to the power 24 upon r. r is given 6.4 into 10 to the power 6
whole square. When you will solve it, then you will get the value as 9.81 meter per second square. Your answer is 9.77. It's very much accurate क्योंकि ये पॉइंट की अप टू 4 डेसिमल्स तक का कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आई है। आपकी जो बुक में है वो पॉइंट के 2 डेसिमल्स तक का जो कैलकुलेशन है उसको करने के बाद 9.77 आ रही है, मींस इट इज ओके। ठीक है, तो ये अभी तक के 4 न्यूमेरिकल्स थे which I have given in your homework. If you have done in your homework, then very good. If you have not done, then check all these 4 numericals that I have taught. Now there is pen paper test 2 that also have given in homework. Let's now discuss the question of this pen paper test 2 one by one. Name the factors on which the value of g depends. First question is, on what factors does the value of g depends? तो g का फॉर्मूला होता है gm upon r square. Then the value of g depends upon capital G, that is universal gravitational constant. Universal gravitational constant. Some students are confused in that what is capital G and what is small g. While I was taking the class of WhatsApp class today, one student told that the value of capital G is 9.8 meter per second square. So students, this is not correct. आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कैपिटल जी है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स रहती है, दैट इज 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ अर्थ. ठीक है, ये m क्या है? मास ऑफ अर्थ है, एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, now coming on question number 2, what is the value of acceleration due to gravity of a freely falling object? अब यहां पर बात आ गई, पूछ रहा है कि कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी. इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, I have told this in the previous video. So students, now coming on question number 3, that is 2 stones of masses 2 kg and 5 kg are released from the top of a tower. Which stone will reach the ground first? कहा जा रहा है कि 2 स्टोन्स हैं, 2 पत्थर हैं छोटे छोटे, जिनमें कि एक का मास 2 kg है एंड अदर का मास जो है वो कितना है? 5 kg है. दोनों को ही एक टावर से ड्रॉप किया जाता है. देन विच स्टोन विल टच द ग्राउंड फर्स्ट? पहले ग्राउंड को कौन टच करेगा? आई वॉन्ट टू रिकॉल द गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट नाउ. गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं. उन्होंने क्या किया था? लीनिंग टावर ऑफ पीसा पर चढ़ गए थे और वहां से 2 स्टोन उन्होंने ड्रॉप किए थे अलग अलग मास के. व्हाट ही ऑब्जर्व? ही ऑब्जर्व दैट both those stones touched the ground at the same time simultaneously. एक साथ उन्होंने टच किए थे ग्राउंड. Means irrespective of their masses, both the stones touched the ground at the same time. Therefore we can say the acceleration due to gravity. हम देख भी सकते हैं कि acceleration due to gravity स्मॉल g की वैल्यू कहीं पर भी किसी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये डिपेंड करती है अर्थ के मास पर. ओके, तो ऑब्जेक्ट, आप कोई भी स्टोन हो, आप
100 kg का स्टोन गिराएं और उसी के साथ में अगर 5 kg का भी स्टोन गिराएंगे तो दोनों ही स्टोन साइमल्टेनियसली गिरेंगे नीचे, ग्राउंड को साइमल्टेनियसली टच करेंगे, एक साथ टच करेंगे। सो अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4, at which place the value of acceleration due to gravity is maximum? Question number 4 is at which place, कहां पर, अर्थ के कौन सी जगह पर, कौन से स्थान पर ग्रेविटी जो है मैक्सिमम होती है। तो हमको पता है कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां से हम देख सकते हैं कि G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल G के, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल M के, बट स्मॉल g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोज टू बॉडीज। नाउ अगर g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो जहां पर अर्थ की रेडियस बढ़ेगी वहां पर g क्या होगा, कम होगा। जहां पर अर्थ की रेडियस घटेगी वहां पर g की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अर्थ की रेडियस कहां पर घटती है? वी नो दैट द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर मिनिमम, यहां पर आर मैक्सिमम, बिकॉज इट इज फ्लैटेंड एट पोल्स। ये जो नॉर्थ पोल है दैट इज नॉर्थ पोल, दैट इज साउथ पोल। यहां पर देखिए, यहां पर क्योंकि फ्लैट है, चपटी है, तो यहां पर रेडियस कम रहती है, और जहां पर रेडियस कम रहेगी वहीं पर क्या होगा, जी विल बी मैक्स। जहां पर आर मिनिमम होगी वहीं पर जी मैक्सिमम होगा। तो आर मिनिमम कहां होगी, आर इज minimum at poles। ओके, मतलब आर जो है, रेडियस जो है अर्थ की, वो सबसे कम कहां होगी, पोल्स पर होगी। हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विथ हाइट? कहा गया है कि वैल्यू ऑफ जी हाइट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है। अब ये भी आपको पता है कि जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट की हाइट अर्थ से बढ़ेगी, इसका मतलब आर भी बढ़ेगा। जब आर बढ़ेगा तो जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर वी कैन से ऑन इंक्रीजिंग द हाइट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर 6, derive the relation between small g and capital G. In the previous video I have taught this derivation, you can watch it from there. Okay, define acceleration due to gravity, ये भी मैंने आपको बताया था, बाकायदा पूरा एक टॉपिक था। derive the value of g on the surface of earth, इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। दैट वाज, उसमें क्या था कि इसी वैल्यू में, इसी फॉर्मूले में आपको मैंने क्या किया था, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रखी थी और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यूज पुट की थी। तो हमारी जी की वैल्यू कितनी आ गई थी, स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एनी बॉडी विच व्हेन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट अंडर द इफेक्ट ऑफ gravitational pull of earth, then it is said to be free falling. Explain the experiment that is performed by Boyle on the acceleration due to gravity. अब बॉयल का एक्सपेरिमेंट में मैंने भी आपको बताया था कि एक ट्यूब थी जिसमें कि एयर को उन्होंने निकाल लिया था, सक कर लिया था, एंड देयर वाज वैक्यूम ऑल ओवर द ट्यूब। फिर उन्होंने क्या किया था, उस ट्यूब को जैसे ही उन्होंने कह सकते हैं कि उल्टा किया, then the feather and the stone touch the bottom of the tube at the same time। तो उन्होंने ये पाया कि जो फेदर है, फेदर जो कि बहुत हल्का था, एंड द स्टोन जिसका कि मास काफी ज्यादा था इन कंपैरिजन टू फेदर,
बोथ टच द बॉटम ऑफ दैट ट्यूब एट द सेम टाइम, दोनों ने ही बॉटम को टच किया उसी टाइम पर, एक साथ. Thus he concluded that the acceleration due to gravity doesn't depends upon the mass of an object, कि acceleration due to gravity जो है वो mass पर डिपेंड नहीं करती. Okay, so this was all about pen paper test 2. You have to do it by your own in your homework section. If there is any kind of problem, then you can ask me. In the next video lecture, I will tell you about the equations of motion for freely falling bodies. ये बहुत ही सिंपल इक्वेशंस हैं. इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा. इसमें कुछ नहीं करना है कि बस g की जगह जहां जहां a है वहां g पुट करना है. जहां जहां आपने a पढ़ा था, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाज v इक्वल टू u प्लस at. ओके, तो इसमें आपको जब ग्रेविटेशन की इक्वेशन बनानी होगी, देन यू विल पुट g in place of a, then the equation will be v is equal to u plus gt. Okay, the other equation, second equation was s is equal to ut plus half at square. The new equation, that is the equation of gravitation, will be s is equal to ut plus half gt square. The third equation was v square is equal to u square plus 2as. Then the third equation will become v square is equal to u square plus 2gs. Okay, this was all about today's lecture. If you have any kind of doubt, any kind of problem, then you can ask me on your WhatsApp group. Okay, thank you students, have a scintillating day ahead. Okay.